Good morning, respected teacher Surya Miss and my dear friends. I am Raj Bandekar will be presenting a speech in front of you. As we all know, day after tomorrow, on 15th August, in India will be celebrating its 75th Independence Day. Independence Day is celebrated as a national holiday in India to remember the long phase of our nation's independence from the British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence on 15th August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at Red Fort. Every year, a Prime Minister in our capital, New Delhi, at Red Fort hosts our national flag. After that, a salute is given by firing 21 guns and the helicopter showers tricolor flowers on the flag. The colors in a flag represents different things. The saffron signifies courage and sacrifice. The white signifies peace and truth. The green signifies faith and chivalry. We all on in the center of the flag is the Ashoka Chakra, which is distributed evenly into 24 spikes. We all we all recall the great sacrifices of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, and Gandhiji, and the other freedom fighters who sacrificed their lives on this special day for their unforgettable contribution to the India's independence. We all hope that, like the way we became independent from the British rule, we also become free from the COVID-19 pandemic. Thank you. Well done. Yes. Very good, sir. Um Now, Panchul will say a poem. Yes, Panchul, miss. okay. Panchul, keep your camera on, beta. Miss, my camera is on. Ah, okay. Can I start? Yes, Panchul. Good morning, Sapna miss. Good morning, Suja miss. I'm going to say the poem today. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dairy, desert sand of dead habits, where the mind is laid forward by the thee, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Gitanjali Rabindranath Tagore. Thank you, Miss. Okay. So now we'll present Anamika Mandal's one dance. She have performed in, I think, class 6th standard. Just wait for 2 minutes, children. He is presenting. Ma'am, switch on your microphone. Okay, okay, 1 minute.
So done. Hello, miss. Huh. Yes, sir. Miss, sorry, I had a network issue, so I Yeah, was it's removed okay. from It's the okay, class. Sat. I saw your message. Okay. Okay. So I hope कि dance सभी को पसंद आया. Everyone like the dance. Anamika, very nice dance. And now Ansh Yadav will say Hindi speech. भाषण. अभी हिंदी में भाषण देंगे अंश यादव. Just listen. नमस्ते आदरणीय अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय मित्रों। नमस्ते आदरणीय अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय मित्रों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर में मैं अंश यादव कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश पर 200 वर्ष तक राज किया था। जब गुलामी के जंजीरों को जकड़ा हुआ भारत कराह रहा था, तब हमारे क्रांतिकारी तथा महापुरुषों ने मिलकर इसे आजाद कराने की जिद ठान ली। गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा कई ऐसे महान क्रांतिकारी एवं नेताओं ने भारत को आजाद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर वह शुभ दिन आ गया जब हमने पहली बार आजादी की सांस ली और वह दिन था 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। कई प्रकार के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कार्य किए जाते हैं। वीरों को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कई पदक हासिल किए। उन सभी विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। बस अब मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Sapna miss? Yes, miss. Miss, I have to enter a whole lot of classes, miss. Yes. Very good, Ansh. Good speech. All of you. Thank you, miss. Whoever has come forward to give a speech. Yes, miss. Now little more is there. Only they have done some drawing and all. Yeah, and yeah, then good, miss, some good. we will talk with regarding this Independence Day, and then after that we will wind up, miss. Yeah. So I'd like to ask your children, what is the speciality? Why do we celebrate Independence Day? Tell me. To Anybody? celebrate our independence. Yeah, the freedom which we have got. All of us were born when the country was free. Imagine those earlier years, 1930s, 1940s. People who were living during those years, during that period, they were literally suffering because India was under the colonial rule, the British rule, and they were torturing Indians. They were plundering a country. They were ruling a country in a very harsh dictatorship way, and people were struggling. But we are fortunate, all of us, including teachers, everyone. We were born when our motherland was free. So we didn't know any difficulty. Understood? We must remember we lost many great lives, many leaders who were people of very good caliber. They all gave their lives for the freedom of our country. So on that day, we must remember them with gratitude. Otherwise, we'd have still been under the colonial rule. So, if with interest, at least one or two leaders, great leaders, you all must read. Take simple books and read about them, their life, how it was during that particular period.
how much they sacrifice for us. The most precious thing each one of us can have is freedom, children. Freedom to speak what we think, freedom to move around places, freedom to do what we like with no worries. Imagine somebody is sitting on us and telling not to do this, not to do this, not to go there. How it will be? Because our country is free, we are free to go anywhere. We were gifted a free India by these leaders. So all of them lost their lives in the freedom struggle, most of them. The others set up the country. And now, of course, we have a little bit of disadvantages. We are still progressing, but we have moved rapidly. We have grown to a very big stature now. Okay? But as students, what is your responsibility, children? You are not going to be like this. Every year, you are growing bigger and bigger. Finally, you will reach youth, that is, young men and women, and then you will become an adult. That time the country is there right in front of you. So you are the future of our country. Therefore, be proud to call yourself an Indian. The strength, remember children, the strength and the future of the country is now in your hands. All of your hands. You must love your motherland. You must love the national flag. That is why the teachers always say, stand straight, stand still during the national anthem. The two holidays, which are the two holidays, children? National holidays? Republic Day and Republic Day. Republic Day, Independence Day. So I'm telling you all, only you have the power to bring a bright and prosperous India. For that, all of you all should study well, take up good jobs, and flourish, and make your country proud. You must be proud to be an Indian. You must love your motherland for that. Okay, children, with this, wishing all of you all a very happy Independence Day. Advance wishes. Okay, continue your celebration, because so many classes have invited me, and I hope we are under the pandemic. I hope you all are enjoying your online classes and you all are regular in your attendance. Okay, children, all the very best. Sapna Miss, I'm leaving this because a whole lot of classes to enter. Yes, Suja Miss. Thank you so much, Suja Miss, to come in our Thank you, class. Sapna Miss, and thank you one and all. Okay, thank you, Suja Bye, Miss. children. Bye, Suja Miss. Bye, ma'am. Bye. Don't leave the class. Thank you. Children, don't leave the class. Okay, Purva, show me your drawing and just say something. Say something about your drawing. Okay, Purva? Miss, I made this. Oh, very nice, Purva. Good. Thank you, Miss. पूर्व आपने ये जो ड्राइंग बनाया है उसके पीछे का क्या कारण है, आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए आपने बनाया ड्राइंग? मिस हमारे फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ड्राइंग बनाया है. ओके, और उसमें आपने किसान और एक तरफ किसान को दर्शाया और एक तरफ फिर से दिखाइए आपकी ड्राइंग जरा. सैनिक को दिखाया है. हाँ, तो ये अभी मुझे बताइए कि कौन मुझे बताएगा ये जो चित्र इन्होंने बनाया है, ये जो ड्राइंग इन्होंने बनाया है, उसको देख के आपको क्या सीख मिलती है, आप क्या बोल सकते हैं उसको देखकर, बताइए. कि हम लोग के पेड़ भरते हैं और सोलर और हमारी रक्षा करते हैं. किसान हमारे देश के अन्नदाता है और सैनिक जो है वो हमारे रक्षक है. ओके, यस. तो भारत देश की रक्षा करते हैं वो, और किसान जो है वो हमारे देश को अन्न पहुंचाते हैं, कि अगर किसान ना हो तो शायद हमें अन्न खाने को ना मिले, इसलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है. बहुत अच्छा पूर्व, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है. जैसे ही हमारी प्रतिष्ठा है इस विश्व में. यस, गुड सर. अनामिका, शो मी योर ड्राइंग. अनामिका, गुड. अनामिका, आपने महात्मा गांधी जी को दर्शाया है तिरंगे झंडे के साथ. अब मुझे बताइए इन्होंने जो चित्र बनाया है वो चित्र क्या कहता है? मिस वो कहता है कि फ्रीडम फाइटर्स हमारे फ्रीडम के लिए
अपनी जान जान पर खेल रहे थे। मिस जान पे ठीक खेल रहे है। हैं। मिस और गांधी जी और अन्य शांति फ्रीडम का फाइटर की वजह से आज हम हमारे ध्वज को लहरा सकते हैं। यस सर, करेक्ट। गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, इसलिए तिरंगे के साथ गांधी जी का चित्र यहाँ पर अनामिका ने जो बनाया है वो हमें यही संदेश दे रहा है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है। और भी उनके साथ साथ में कई क्रांतिकारियों ने भी हमारे देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था। क्रांतिकारी कौन कौन थे बताइए? मिस भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, गांधी, गांधी जी, नेहरू, महात्मा गांधी, महात्मा भगत गांधी सिंह, क्रांतिकारी नहीं थे ध्रुवी। सॉरी भगत क्रांतिकारी। सिंह, मिस भगत मुझे लगा सिंह, फ्रीडम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। राजदेव, राजगुरु, ये सभी जो थे वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने यहाँ पे हमने देखा था जब हमारा भारत देश आजाद हो रहा था, आजाद कराने की कोशिश चल रही थी, जब मुहिम चल रही थी, तब आपने देखा उस समय की, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे के इतिहास में आपको, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार दो गुट तैयार हो गए थे भारत में, दो ग्रुप रेडी किया गया था भारत में, जो कि एक ग्रुप तो था जो नॉन वायलेंस का था और एक वायलेंस का था। नॉन वायलेंस में कौन थे? महात्मा गांधी और उनके सहयोगी थे। और जो वायलेंस करके करते थे, जो हिंसा की प्रवृत्ति उन्होंने अपनाई थी, वो कौन थे? भगत सिंह, जो क्रांतिकारी थे वो। क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वो क्या सोचते थे कि जहां अंग्रेज दिखे या जहां अंग्रेजों का उनके द्वारा जो बनाई गई जो कारखाने वगैरह थे, जहां पे वो अपने बारूद रखते थे, अपने गन्स और जितने हथियार रखते थे, वो सब उसको उड़ा देते थे और अंग्रेजों को मारने से भी चूकते नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसकवादी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। उनका क्या था कि वो सिर्फ अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए शांति से, वो चाहते थे कि शांति का संदेश देते हुए वो इनको, अंग्रेजों को इस भारत देश से बाहर खदेड़ दे, भारत देश से बाहर निकाल दे। मैम ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा? अगर किसी को कुछ पता है तो हम थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने विचारों को यहाँ पे। मिस मिस जो ब्रिटिश के जो लोग थे, उन लोग ट्रेडिंग, मतलब उन लोग व्यापारी करने के लिए भारत में आए थे। तो उससे उन लोग ने यहाँ की स्पाइसेस होती ना, मसाले, उनका विज्ञापन, मतलब उनको खरीदने आए थे, ट्रेडिंग करने, व्यापार करने। तो उन लोग को बहुत ही सब बहुत महंगा पड़ता था। तो उन लोग ने अपने देश में कॉलोनी बनाना शुरू की, तो उससे उन लोग को सब सस्ते में मिलता था स्पाइसेस। तो उस हिसाब से इन लोग इंडिया में आए और उससे राज करने लगे। अंग्रेजों ने हमारे भारत में प्रवेश कैसे किया था? व्यापार के बहाने। ठीक है, उन्होंने व्यापार के बहाने, बिजनेस के थ्रू उन्होंने हमारे देश में प्रवेश किया था। ठीक है। और धीरे, यस साथ बोलिए। अकबर के काल के दौरान था वो। मैं सब वो लोग को पता चला कि अपने व्यापार के बहाने उन्होंने भारत देश में प्रवेश किया और यहाँ रहकर उन्होंने देखा कि यहाँ पे भारत देश में मतलब कोई एक ऐसा नहीं है जिसके अंडर में सभी लोग हो, मतलब यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। My daughter is disturbing a lot. ओके। तो उन्होंने, मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो वो जब वो व्यापार के बहाने भारत में आए तो उन्होंने हमारे भारत की स्थिति देखी कि किस प्रकार यहाँ पे लोगों में ज्यादा यूनिटी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालना शुरू किया। उनकी एक ही नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी फूट डालो और राज करो।
उन्होंने इस नीति को अपनाया और इस नीति को अपनाकर वो हम पर राज करने में सफल भी हो गए, और इसलिए उन्होंने हम पर 200 वर्षों तक, 200 साल तक उन्होंने हम पर राज किया। तो इस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया और उन्होंने हम पर राज किया। लेकिन धीरे धीरे कई भारतीय ऐसे थे जो इनकी गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना चाहते थे, देश को मुक्त कराना चाहते थे, और धीरे धीरे कोशिशें शुरू हुई। मंगल पांडे ने भी बलिदान दे दिया था अपना, इन लोगों के ही, अंग्रेजों से ही मुक्ति दिलाने में उन्होंने। फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी आए, हमने देखा किस प्रकार असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। फिर धीरे धीरे भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए मुहिम जो थी वो एकदम तेज हो गई, जब सभी लोगों को पहले जागरूक किया गया, पहले सबको अवेयरनेस फैलाई गई कि ये जो अंग्रेज है यहाँ पे हम पर रूल कर रहे हैं, हमारे देश पे ये दूसरे देशवासी आके हम पे रूल कर रहे हैं, हम पे राज कर रहे हैं, और हमें इन्हें यहाँ से भगाना है। हमें अपने देश को स्वतंत्र करके अपना संविधान बनाना है, अपना नेता चुनना है, और हमें एक अच्छा राज बनाना है। तो इस प्रकार धीरे धीरे नेताओं, राज महापुरुषों की कोशिश और क्रांतिकारियों के योगदान से हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, जिसकी खुशी हम अब तक हर साल 15 अगस्त के दिन हम उसे मनाते हैं। और उसमें वीरों को, हाँ बोलो ओम। आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। यस, 75 वर्ष हमारे भारत देश को आजाद हो गए हैं, और आज के दिन ही कई वीरों को प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कई वीरों को सम्मानित करते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में भी आपने देखा हमारे देश को स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ। किसने लाया ये स्वर्ण पदक? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। इसमें क्या क्या जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, जैवलिन में, यस, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल उन्होंने हमारे देश को दिलाया, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो अब आज के दिन उन सभी का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कोई बच्चे की, किसी की आवाज अच्छी है तो प्लीज आप एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टियाना, से समथिंग। सर, मुझे अपनी एक ड्राइंग दिखानी थी। दिखाइए सर। सार्थ का नेटवर्क इशू है। हाँ, ओके, ये एक लायन है, शेर है, और नहीं, मिस टाइगर है। ओके, लेट मी सी प्रॉपर्ली सार्थ। 2 मिनट में। टाइगर को ही शेर कहते हैं। मिस मैंने भी बनाई, दिखाओ। बाघ मिस शो सार्थ अगेन। Your camera is off. Yeah, miss, wait. Yeah. मैंने पेंट मिस नहीं मैंने भी किया, टाइगर इसलिए वो आएगा नहीं। मिस, वेरी गुड सार्थ, बहुत अच्छी ड्राइंग है आपकी। पूर्व की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और अनामिका ने भी बहुत अच्छा बनाया है। अनामिका, आपने बनाया या आर्यन ने बनाया था? मिस मैंने बनाया। ओके, गुड। आर्यन की भी ड्राइंग अच्छी है, मुझे याद है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपने बनाया या आर्यन ने बना के लिख दिया था आपको। ओके, मिस मैंने भी टाइगर बनाई है, दिखाओ। हाँ, टाइगर मैंने भी बनाई है, दिखाओ। बताओ बताओ। ओके, कोई यहाँ पे गाता नहीं है? किसी की आवाज अच्छी नहीं है आपकी क्लास में?
नहीं, आतिया, माज, उमेर, फिर से कैमरा ऑफ हो गया। रमशा, हाँ वेरी गुड अनामिका, बहुत अच्छा, गुड, नाइस। यस, ऐसे तो मैं स्केच बनाता हूँ मिस। आप बनाते हैं तो दिखाइए ना, अगर बनाया है तो दिखाना चाहिए ना, जब देश हमारे देश से संबंधित हो कुछ। नहीं, देश से संबंधित नहीं है। मिस मैंने भी बहुत सारे पेंटिंग बनाए। मिस मेरे भी बहुत सारे पेंटिंग्स है, सिर्फ वो सुपर हीरो पर बेस्ड है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। ओके चिल्ड्रन, सो तो आज हम अपना क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्लीज आई वांट टू टेक अटेंडेंस, डोंट लीव द क्लास, आई विल टेक अटेंडेंस। हाँ, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा। ओके तो अभी कोई भी और पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है, कोई गाना नहीं गाना चाहता? ठीक है, तो हम सब साथ में, हम 2-3 बच्चे साथ में गाए। मेरे साथ कौन गाना चाहेगा? कौन सा मिस सॉन्ग? आप बोलिए कौन सा गाना गाना है, तो हम गाते हैं साथ में। बस रुको, ढूंढने दो। नेशनल एंथम गाते हैं। मैम हम लोग वंदे मातरम गा सकते हैं। Children, I'm taking attendance, just a minute. Darshil, are you there, Darshil? Yes, miss. Yes, miss. And then why your camera is off, Darshil? Okay. Okay, children, then how was the program? Did you like? Yes, miss. Yes. What did you like most? क्या आपको ज्यादा पसंद आया? The painting and the sketch. मिस पेंटिंग Painting. और सुजा मिस की स्पीच। सुजा मिस का स्पीच गुड, Yes, एंड पंशुल का पोयम भी अच्छा था। मुझे सब कुछ अच्छा लगा। मुझे पता नहीं है। हाँ, मैंने सुना नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। आप ये हो गए थे ना, लीव हो गए थे ना तभी। स्पीच भी अच्छी थी। Miss, everything was nice. नाइस, नो? ओके,
गुड चिल्ड्रन। सो अच्छा सेलिब्रेशन हमारा हो गया, बस थोड़ा सा मेरी बेटी ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया आज। हाँ, ओके ओके, बाय चिल्ड्रन।